So let me सर आवाज begin. So हाँ हाँ बोलो. आवाज ठीक है सर। ओके जी, ओके. सो कल हमने सिंगुलर पॉइंट्स या सिंगुलरिटीज जिनको बोलते हैं हमने डिफाइन किया था, व्हाट इज अ सिंगुलर पॉइंट, एंड देन उसकी एक टाइप हमने आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज को डिस्कस किया था थोड़ा बहुत. उसको लेके आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज पे हमने रेजिड्यू थ्योरम करी थी, एंड वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन आल्सो कि इंटीग्रल्स की वैल्यू इंटीग्रेशन के काम हम रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. तो continuing further, today we will discuss some further types of this isolated singular points, and it has three types, and I will discuss one by one, and you will see that the behavior of a function at each type of these singularities is completely different, or different from each other. But let me again consider a singular z not be an isolated singular point of a function f. And if it is isolated singular point, then clearly f is analytic in some deleted neighborhood of this function, and I can write its Taylor Laurent expansion, and consider its Laurent expansion in some deleted neighborhood. Consider Laurent expansion. Laurent expansion. This is Laurent expansion of f. It is of this form fz. It has first this part an, where all the powers of z minus z naught are positive, and then it has another part m equals to 1 to infinity. It is, let's denote these coefficients by bm, 1 upon z minus z naught to power m, and this part of this Laurent series expansion, which involves the negative powers of z minus z naught, as you know, this is known as principal part of this function f at the isolated singularity z naught. So at each singularity you have this principal part, and no need to talk about this function. This part has no trouble for us. This is called analytic part. This is called analytic part of f at z naught. So the singularity contribution of the singularity comes from this principal part, and based on the number of terms this principal part has, we characterize the following. Just a minute, I need to attend a call. Okay. So this is called principal part at z naught. Now, depending upon the number of terms this principal part have, we have the following characterization. First, if all the coefficients of this principal part, all these coefficients are 0 for all m equals to 1, 2, so on, then what will happen then? See, then you will have no principal part. Principal part will be 0, then you will have f given by this analytic part, etc. Then f has power series expansion about z naught, क्योंकि principal part तो 0 होगा. What will be the power series of f at about z naught? This will be this thing. आपके पास यही वाला पार्ट बचेगा, which is actually a power series. एंड इवन द हमने इसको मेंशन किया है कि ये किसी डिलीटेड नेबरहुड में है, बट अगर हम इसको डिफाइन करें, बट इफ वी डिफाइन z नॉट पे हम इसको वैल्यू कोई असाइन करें, f at z naught to be the first coefficient of this power series,
तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये पूरी पावर सीरीज बन जाएगी, पावर सीरीज एक्सपेंशन बन जाएगी एफ की अबाउट z नॉट, एंड यू नो दैट पावर सीरीज एक्सपेंशन रिप्रेजेंट्स द एनालिटिक फंक्शन, एंड सो दिस फंक्शन f becomes analytic then at z नॉट। तो इस केस में देखिए कितना ये अजीब सा बिहेवियर हो गया, अजीब सा नहीं, बड़ा स्मूथ बिहेवियर हो गया फंक्शन का, कि ये जो 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 आइसोलेटेड सिंगुलरिटी था, तो लॉरेंट सीरीज के जब सारे कोफिशिएंट्स वैनिश हो गए तो ये फंक्शन एनालिटिक बन गया यहाँ पर हमें। तो इस सिंगुलरिटी को हम बोलते हैं, देन दिस सिंगुलरिटी z नॉट इज नाउन एज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी, दिस इज नाउन एज removable singularity, is known as removable singularity of f। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप के जहां रिमूवेबल सिंगुलरिटी आपके पास बनती है। जो रिमूवेबल सिंगुलरिटी इज व्हाट, वेयर दिस फंक्शन का जो लॉरेंट सीरीज में सारे कोफिशिएंट्स, नेगेटिव कोफिशिएंट्स सारे वैनिश हो जाते हैं। ठीक है, वी विल स्टडी अनदर थ्योरम व्हिच इज नोन एज रीमान्स थ्योरम ऑफ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। That will give you one of the condition which implies that a particular singularity is a removable singularity, but that will be done at a later at the end of this lecture, I think. But let me see an example first. If you look at this function fz equals to ez minus 1 upon z, look at this function. Clearly, it looks like that this function doesn't seem to be defined at z equal to 0. So z naught, z equal to 0 is a isolated singularity for the time being, isolated singularity of f. But if you look at the Lorentz series expansion, then you will get to know that this z naught is removable. 0 is a removable singularity of this. How you are going to get its Lorentz series expansion? You know the expansion, Taylor series expansion of Ez. Then you just bring out the 1 by z. Ez का Taylor series expansion क्या है? 1 plus z plus z square upon 2 factorial plus z cube upon 3 factorial plus so on, and लास्ट टर्म क्या है? -1, और 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई z से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, वट यू विल हैव, 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, यू विल हैव 1 प्लस यू विल हैव z अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब देखिए ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, एंड दिस इज वैलिड फॉर मॉड z ग्रेटर देन 0. This is true for mod z greater than 0, and this is a Lorentz series, and now you see there is no negative power of z. That means all the coefficients, all the negative coefficients in the Lorentz series of this function about 0 are 0. So this shows that f has a removable singular point, or you can say removable singularity at z equal to 0. So this is an example you might have seen. Similarly, you can see likewise, you can see that this sign z upon z has removable singularity at 0, has removable singularity at z equal to 0. Is it okay? Is it okay to you to know the removable singularity? Yes, sir. आपको बस लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन देखनी है, और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में उसकी नेगेटिव कोफिशिएंट्स को देखिएगा। नेगेटिव कोफिशिएंट्स अगर सारे खत्म हो रहे हैं तो देन द सिंगुलरिटी इज रिमूवेबल। सो लेट्स लुक एट अदर टाइप्स, अनदर टाइप ऑफ दिस आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो सपोज आपके पास इफ सारे के सारे कोफिशिएंट्स 0 नहीं है, इफ all bm's are not 0, and only finitely many coefficients are non-zero.
That means you have finitely many non-zero BM, these negative coefficients are all other zero. So then what will happen? Then there is some m such that कोई तो एक m होगा जो आपके पास नॉन जीरो होगा, उसके बाद के सारे कोफिशिएंट्स जीरो होंगे, उसके बाद जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो होंगे. सो देन द लॉरेंट सीरीज का क्या देखना, जो लॉरेंट सीरीज मैंने पीछे लिखी है आपके पास, लेट मी नेम इट समथिंग, let me name this one. So then this Lorentz series has then first is of the form, then it will reduce to this form fz summation n equal to 0 to infinity. एनालिटिक पार्ट से कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये इट विल बी, तो ये हो जाएगा आपके पास b1 अपॉन z माइनस z नॉट प्लस b2 अपॉन z माइनस z नॉट स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑन प्लस bm अपॉन z माइनस z नॉट टू पावर m. बाकी सारे कोफिशिएंट जीरो हैं और b1 b2 में से भी कुछ जीरो हो सकते हैं, बट bm का गारंटी है कि bm इज अ नॉन जीरो. तो इस केस में जब आपके पास प्रिंसिपल पार्ट में ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स हैं, इस केस में हम इस सिंगुलरिटी को बोलते हैं पोल. इन दिस केस z naught is known as a pole of order m. ठीक है, दिस इज नाउन एज अ पोल ऑफ ऑर्डर. सो ऑर्डर पोल का ऑर्डर होता है, दिस इज नाउन एज अ पोल ऑफ ऑर्डर m ऑफ f. ठीक है, और स्पेशल केस में हम m इक्वल्स टू जब 1 होता है तो उस केस में z नॉट को हम बोलते हैं, z नॉट इज known as a simple pole, known as a simple pole, is known as a simple pole. तो ये आपके पास है पहली टाइप रिमूवेबल सिंगुलरिटी. अनदर टाइप यू हैव पोल, पोल के साथ ऑर्डर एसोसिएटेड है, जैसे जीरोस के साथ ऑर्डर एसोसिएटेड था, पोल के साथ भी ऑर्डर एसोसिएटेड है. तो लेट्स लुक एट अ एग्जांपल व्हिच विल मेक इट क्लियर. लेट्स लुक एट दिस example. I will consider this one. Let f of z be equal to exponentially z upon z cube. Let's look that z equal to 0 इसका पोल बनता है और उसका ऑर्डर कितना है. तो इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आप अगेन ez की एक्सपेंशन फाइंड करें अगर, तो इट विल बी z क्यूब, और ez की एक्सपेंशन देखेंगे 1 प्लस z स्क्वायर बाई 3 factorial plus z2 factorial, actually z cube by 3 factorial plus so on. तो आप 1 by z cube से अंदर मल्टीप्लाई करो, you will have first term 1 upon z cube plus then you will have 1 upon z square, then you will have 1 upon 2 factorial into 1 upon z plus यहाँ से आगे जो पावर्स होंगी वो आपके पास पहली पावर आएगी 1 by 3 फैक्टोरियल प्लस देन यू विल हैव z अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस यहाँ से आगे आपकी सारी पावर्स z की पॉजिटिव होंगी. तो सो ये वाली आपके पास नेगेटिव पावर्स हैं z की, तो दिस आर ओनली फाइनाइटली मेनी. तो दैट मीन्स f हैज अ पोल एट दिस शोज दैट f हैज अ पोल एट z इक्वल टू 0. और ऑर्डर कितना है इस पोल का, अब देखिए जो हाईएस्ट पावर है z 1 by z की, हाईएस्ट पावर 3 है एंड द ऑर्डर इज 3 एंड द ऑर्डर is 3. So this function ez upon z cube, it has a pole at origin of order 3. You can see other also. For example, you can check this function. If let me take let fz equals to something 2z square plus 3z plus 1 upon 5z cube plus 3z plus 1. You can look at this. This function will have 3 poles, I can say. And what will be the poles of this function? The poles of this function will be the zeros of this denominator.
तो वो जीरोस फाइंड कीजिएगा और फिर वहां से ऑर्डर भी आप फाइंड कर सकते हैं कि कितना ऑर्डर है उसका. तो दैट सिमिलरली यू कैन फाइंड इट हैज, आई कैन से दैट इट हैज एट मोस्ट 3 पोल्स. अब मुझे नहीं पता कि वो पोल्स रिपीटेड हैं या नहीं है 3 पोल, मैं इसलिए एटमोस्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई पोल इसमें रिपीट हो रहा हो. रिपीट होना मतलब हो सकता है 5z क्यूब जो डिनोमिनेटर है आपका वो क्यूब बन रहा हो किसी टर्म का, या उसकी एक टर्म स्क्वायर में हो रही हो, दूसरी सिंगल हो. तो बट देन एनीवेज द थिंग इज टू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट्स अ पोल or not. And the last type of isolated singularity is known as essential singularity. And essential singularity का केस बनता है कि if the principal part of f has infinitely many non-zero terms or non-zero coefficients, better would be to use non-zero coefficients, then this singular point z naught is known as essential singularity. Essential singularity of f. So these are the 3 types. First, removable singularity, then pole, and then you have essential singularity. Let's consider an example of an essential singularity also. You look at this function fz equals to e power 1 upon z. If you look at its expansion, its expansion will be 1 plus 1 upon z plus 1 upon 2 factorial into z square plus 1 upon 3 factorial into z cube plus so on. So look at except one, this one is the principal part. This is the principal part of this function, the Lorentz series of this function about z equal to 0, and this is valid for this is principal part, and this is valid for each mod z greater than 0. So this is the principal. When you look at it, all the terms in this principal part are non-zero. And what we required only to have infinitely many the non-zero terms. So this implies that this function has essential singularity at 0. So z equal to 0 is an essential singular point of this function fz equal to exponential of 1 upon z. So one of the things that you need to master on is that you should be given a function. If there is a function which is given to you, आपको उसकी सिंगुलरिटी ढूंढनी आनी चाहिए कि उसकी सिंगुलरिटी कहाँ है, वो आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है. और फिर आइसोलेटेड में भी आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि वो आपके पास कौन सी टाइप है, क्या वो रिमूवेबल है या पोल है. पोल है तो उसका ऑर्डर कितना है, या क्या वो एसेंशियल सिंगुलरिटी है. जी ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम कुछ इसके मेथड्स भी देखेंगे चेक करने के. यू गेट टू ऑब्जर्व दोज थिंग्स कि इससे पता चलता है कि कोई सिंगुलरिटी है अगर, तो पहले तो वो सिंगुलरिटी होनी चाहिए, तो फिर वो सिंगुलरिटी है तो वो पोल कब होगी और वो एसेंशियल सिंगुलरिटी कब होगी और वो रिमूवेबल कब होगी. ठीक है, हम आज एक करेक्टराइजेशन पोल्स की पढ़ेंगे और एक सफिशिएंट कंडीशन व्हाट यू से रिमूवेबल सिंगुलरिटी की पढ़ेंगे. तो फर्स्ट, इज इट ओके बाय द वे टिल नाउ, डू यू हैव एनी क्वेरी? बोलो, कुछ है अभी तक या शैल आई कंटिन्यू? Continue, sir. Okay then. So the first thing, that I'm going to tell you is it is in the form of theorem that given a function f, and suppose
that for some positive integer m, this function phi z defined as z minus z naught power m f of z is analytic at z naught, and phi at z naught is not equal to 0. ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फी का वैल्यू z naught पे सब्स्टिट्यूट करने से ये 0 नहीं होता है, तो दैट मीन्स f का वैल्यू एट z naught क्या होगा, क्योंकि z माइनस z naught तो 0 होना था अगर z naught सब्स्टिट्यूट करें, लेकिन so that means f का वैल्यू एट z naught फाइनाइट नहीं है. फाइनाइट वैल्यू होता तो 0 इंटू कोई भी फाइनाइट नंबर 0 होता. तो यहाँ से हिंट लग जाएगा आपको कि क्या होने वाला है. तो देन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट f हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट z naught. और नॉट ओनली पोल ऑर्डर m का होगा, हम इसके रेजिड्यू के बारे में भी पता लगा सकते हैं. And also the residue of this function at that z naught can be computed as this will be इस फी फंक्शन का डेरिवेटिव m माइनस 1th डेरिवेटिव आपको कंप्यूट करना है z naught पे, क्योंकि ये एनालिटिक है. यू कैन कंप्यूट इट्स डेरिवेटिव m फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल होगा. एंड दिस इज द केस इफ अगर आपके पास m ग्रेटर देन 1 है, अदरवाइज जो इसका रेजिड्यू होगा दैट विल बी फी एट z naught फॉर m इक्वल्स टू 1. ठीक है जी. तो रेजिड्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं. फी को अगर आप फी से दिक्कत है, यू जस्ट इंटरप्रेट दिस z माइनस z naught टू पावर m आल्सो. तो इसको लिखने का एक और तरीका भी है, बिफोर आई राइट इट एज अ प्रूफ, एंड ये रेजिड्यू इस तरीके किया जा सकता है. प्रॉब्लम f का डेरिवेटिव वन अपन m माइनस 1 फैक्टोरियल मुझे बाहर भी लिखना चाहिए था, इंटू z माइनस z नॉट टू पावर m इंटू एफ जेड. ये भी देख सकते हैं कि क्योंकि ये फंक्शन फिर एनालिटिक हो जाता है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं और डेरिवेटिव के लिमिट भी आप फाइंड कर सकते हैं. तो प्रैक्टिकली आपको इसको इस तरीके से ही कंप्यूट करना पड़ेगा. तो एनीवेज लेट्स लुक एट द प्रूफ. प्रूफ कोई ज़्यादा है नहीं है इसका. तो अगर आपको ये बोला जा रहा है कि फी एनालिटिक है, हाइपोथेसिस बोलता है कि फी एनालिटिक फंक्शन है, तो अगर फी एनालिटिक है किसी पॉइंट पे, तो आप उसका टेलर सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इन सम ओपन डिस्क अबाउट z naught, by Taylor's theorem we have this phi z has this expansion, phi at z naught plus derivative of at z naught into z minus z naught plus double derivative of phi at z naught upon z, this has to be ये कहाँ है मेरे को, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा है. Where is this eraser type things today? Okay, they are here. So this, let me write the final term plus so on. It will be plus something m at z naught upon m factorial into z minus z naught to power m plus so on. So it will have a Taylor series expansion. This is the Taylor series expansion. Now what you're going to do, you just get the f from here. What is phi? Phi is z minus z
naught to power m times f of z, and I'm shifting this factor z minus z naught to power m to the right hand side of this equation, and I'm getting this fz equals to, I will have this phi z naught upon z minus z naught to power m plus derivative of phi at z naught upon, I will have z minus z naught to power m, sorry m minus 1 plus so on. लास्ट टर्म आपके पास क्या होगी, इट विल बी, पहले m माइनस वन डेरिवेटिव भी लिख लीजिएगा, m माइनस वन डेरिवेटिव एट z नॉट, it will be m factorial into z minus z naught to power m minus 1, and then you will have, और जब mth इधर करोगे तो you will have mth derivative of f at z naught अपॉन m फैक्टोरियल, यहाँ आपके पास कोई पावर नहीं आएगी z माइनस z नॉट की, फिर यहाँ से आगे आपके पास जो भी पावर्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यू विल हैव नेक्स्ट टर्म m प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ phi एट z नॉट अपॉन इट विल बी m प्लस वन फैक्टोरियल इनटू यू विल हैव z माइनस z नॉट, एंड इससे आगे सारी पॉजिटिव पावर्स आएंगी. तो नाउ लुक एट डीपली, this is nothing but this is the Taylor's Lorentz series expansion of phi, and except at z naught equal to 0, this is valid for mod z minus z naught greater than 0 and less than r. इस डिस्क में इस डिलेटेड, अब इस डिस्क के z naught को छोड़ के बाकी हर जगह ये सीरीज वैलिड है, एंड दिस इज द लॉरेंट्स सीरीज. तो अब इस लॉरेंट्स सीरीज को आप पोल की डेफिनेशन लगा के अगर देखें तो पोल की डेफिनेशन से आपके पास, since आपके पास these are the only finitely many terms, यहाँ z की पावर 1 है जी, ठीक है, यहाँ z की पावर z माइनस z नॉट की पावर 1 है, तो फाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं. और कितनी टर्म्स है, इट हैज़ m टर्म्स, और m टर्म्स जो फाइनल टर्म्स है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है, ये कोफिशिएंट है इसका, ये हाइपोथेसिस में आपके पास नॉन जीरो है. तो देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ अ पोल दिस फंक्शन हैज अ पोल, hence f has a pole of order m at z naught. So this one was the simpler one, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाला इशू नहीं था. Is it okay? तो अगर आपको रेजिड्यू फाइंड करना है तो रेजिड्यू क्या होता है, बाय डेफिनेशन रेजिड्यू जो आपके पास है वो z माइनस 1 अपॉन z माइनस z नॉट का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज द रेजिड्यू. और यहाँ पर 1 अपॉन z माइनस z नॉट का रेजिड्यू देखिएगा, 1 अपॉन z माइनस z नॉट का रेजिड्यू ये फंक्शन है, ये टर्म है, और ये टर्म क्या है, एंड इज रेजिड्यू, एंड रेजिड्यू ऑफ f एट z नॉट जो है वो एक्सप्रेशन क्या है, वो ये है जी, ये ग्रीन में, इट्स m माइनस वन डेरिवेटिव एट z नॉट अपॉन m फैक्टोरियल, m minus 1 factorial. It is m minus 1th derivative at z naught upon m factorial. ये आपके पास रेजिड्यू आ गया जी. तो m1 भी होगा तो 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप यू कैन गेट बैक phi at z naught, क्योंकि जीरो डेरिवेटिव मीन्स द फंक्शन itself, you don't have to define the derivative. So this is one way. Now the next important theorem that will characterize necessary and sufficient condition for a singular point to be a pole. An isolated singular point is a pole of f if and only, हम इसको ऑर्डर नहीं स्पेसिफाई करेंगे, इफ एंड ओनली इफ जस्ट ये जो लिमिट है z गोज टू z नॉट, ये लिमिट इन्फिनिटी है जी, ये है जी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. हम इसको ऑर्डर यहाँ पर, ऑर्डर यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा, बट इतना पता चल जाएगा कि इट इज अ पोल और इज नॉट अ पोल. So let's prove it. Suppose first that f has a pole of order m. We first suppose that f has a pole. अगर इसका कोई पोल होगा तो कोई ऑर्डर भी होगा. तो we suppose that f has a pole of order m at z naught. Then इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन देखिएगा. लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आपके पास इसकी आएगी
how you going to write this? So let phi of z equals to, then it has a Lorentz series expansion n equal to 0 to infinity a n z minus z naught to power n प्लस इसके अंदर फाइनाइटली मेनी टर्म्स होंगी जी, इसके अंदर फाइनाइटली मेनी टर्म्स होंगी j फ्रॉम 1 to m, इसका ऑर्डर m है तो इट हैज़ टू बी bj 1 upon z minus z naught to power j, and this is valid for some deleted neighborhood या in a punctured disk about z naught. ठीक है. Now let us look at this function phi of z equals to z minus z naught to power f of z power m. अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप इससे, तो आपके पास क्या हो रहा है, दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी n इक्वल टू 0 to infinity a n z minus z naught to power, it is n plus m. तो अगर आप यहाँ देखें इस सेकंड समेशन को आप ओपन करें तो पहली टर्म आपके पास जहाँ पावर आपके पास z की पावर 1 थी, तो अब आपके पास हो जाएगा z माइनस z नॉट टू पावर m माइनस 1. फिर सेकंड जो आपके पास होगा b2 के साथ होगा z माइनस z नॉट टू पावर m माइनस 2 प्लस 1. लास्ट टर्म आपके पास बचेगी bm, तो bm के साथ तो आपके पास z माइनस z नॉट की कोई पावर नहीं बचेगी क्योंकि वो ऑलरेडी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो नाउ लुक एट दिस फंक्शन, दिस इज you don't have any negative power in this series. All the powers of z minus z naught are positive, and that means this is a power series, and it is valid for each z in this disk whatsoever you are choosing. Now also look at this thing, also phi at z naught is equal to bm. So phi extends to be a function, phi extends to be a function which is defined at z naught also. That means phi is, and bm, since f has a pole of order m, तो ऑर्डर m का पोल होने का मतलब है bm नॉन जीरो है. सो दिस फंक्शन phi extends to be analytic at z naught and has non zero value at z naught. Now this is non zero. Now सिंस ये आपके पास ये फंक्शन आपके पास एनालिटिक है तो ये कंटिन्यूअस भी होगा, तो सो इसका लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा. फी एट जेड जो होगा ये लिमिट आपके पास एग्जिस्ट करेगा. एंड दिस ये लिमिट कितना है आपके पास, ये लिमिट है बी एम, क्योंकि फी एट जेड नॉट होना चाहिए कंटिन्यूटी की वजह से. बट यहाँ ये राइट हैंड साइड में क्या होगा, लिमिट जेड इक्वल टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट टू पावर एम एफ ऑफ जेड. So this implies that this limit z minus z naught power m f z, this limit exists and is non-zero. So what it implies, what this implies means that अगर ये non-zero तो इसका मतलब ये f z का लिमिट क्या होना चाहिए. This implies that limit z approaches to z naught f z का जो लिमिट है तो दिस लिमिट हैज टू बी इन्फिनिटी. दिस कैन नॉट बी फाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट लिमिट होती ना अगर, तो फाइनाइट लिमिट से आपके पास 0 इंटू फाइनाइट नंबर 0 हो जाता. बट हियर यू डोंट हैव दिस नंबर टू बी 0, सो इट हैज टू बी इन्फिनाइट. तो इसका मॉडुलस का लिमिट भी इन्फिनाइट आएगा. ठीक है, तो ये डायरेक्ट पार्ट हो गया कि जब इसका पोल है तो इसका लिमिट 0 होगा उस पॉइंट पे. तो कन्वर्सली वी सपोज दैट वी हैव, कन्वर्सली वी सपोज दैट दिस होल्ड्स. Conversely, we suppose that star holds. So then what happens? If star holds, then it implies that fz is not equal to 0 for z in a deleted नेबरहुड ऑफ z नॉट. से इसका डिलीटेड नेबरहुड है ये होगा, कोई डिस्क होगी
उसमें से आपको z नॉट निकालना है, क्योंकि z नॉट पे लिमिट जब जा रही है तो फंक्शन इन्फिनिटी को जा रहा है, उसका मॉडुलस इन्फिनिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो फंक्शन जीरो तो हो नहीं सकता ना, तो ये नॉन जीरो होगा। सो अगर ये नॉन इस नेबरहुड को मैं n से डिनोट करता हूं, एंड दस इसका रेसिप्रोकल अब जो होगा h से मैं डिनोट करता हूं 1/f is analytic. This is analytic at in this neighborhood n, and और इसका लिमिट क्या होगा, एंड लिमिट z approaches to 0 z naught mod of h z जो होगा that has to be limit z approaches to z naught 1 upon mod of fz, तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि मॉड ऑफ जेड का लिमिट इन्फिनिटी, तो ये जीरो हो जाएगा। सो इसका मतलब हो गया एच, क्योंकि एच का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है जी जेड नॉट पे, और ये लिमिट जीरो है, तो चाहे कुछ भी लिमिट होता तो लिमिट एग्जिस्ट, फाइनाइट लिमिट जब भी होगा तो इसका मतलब एच जो है एच इज बाउंडेड, क्योंकि लिमिट जब एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन वहां बाउंडेड हो जाएगा उसके नेबरहुड में। एच इज बाउंडेड, आई विल से नेबरहुड में कहने का एक और तरीका ये भी होता है कि एच इज बाउंडेड नियर जेड नॉट। तो ये ही है जी, क्योंकि जेड नॉट जो है, जेड नॉट इज अ सिंगुलरिटी एट द टाइम, क्योंकि जेड नॉट पे वी डोंट नो दिस इज डिफाइंड और नॉट, बट जेड नॉट इज अ सिंगुलरिटी, बट नाउ एच इज बाउंडेड नियर जेड नॉट, and here I'm going to use now a theorem which I'm going to prove later on. This theorem is known as by Riemann's theorem on removable singularity. Removable singularities, H is analytic. H is analytic at z naught, and वैल्यू ऑफ h एट z naught क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि लिमिट जीरो है। तो रिमान्स रिमूवेबल सिंगुलरिटी जो है वो यही है कि अगर फंक्शन किसी सिंगुलर पॉइंट के नेबरहुड में बाउंडेड है, किसी सिंगुलर पॉइंट के नेबरहुड में अगर फंक्शन बाउंडेड हो जाता है, तो वो सिंगुलरिटी उसकी कौन सी सिंगुलरिटी बन जाती है, वो उसकी रिमूवेबल सिंगुलरिटी बन जाती है। हम इसका प्रूफ करेंगे, बट ये अभी देख लीजिएगा। तो ये इसका जीरो बन गया जी, एच एट जेड नॉट इसका जीरो बन गया, तो एच का जीरो बन गया जेड नॉट, तो एच का जीरो बन जाता है अगर, तो दिस इंप्लाइज दैट जेड नॉट इज अ पोल ऑफ एफ, ये इसका पोल बन जाता है। और ये क्यों बन जाता है, आई एम गोइंग टू लीव दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज के जेड नॉट इज अ पोल ऑफ एफ ऑफ ऑर्डर m if and only if z naught is a zero of its reciprocal of same order of order m। ये आपने प्रूफ करना है जी। दिस इज एन एक्सरसाइज, यू हैव टू डू दिस थिंग। दिस अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, पोल्स और जीरोज में क्या कनेक्शन है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू tell you what is a Riemann's theorem on removable singularities, but before that if you have any query I can check that। बोलो। नहीं है, you will not speak। No, sir. Okay, so now let me state the theorem that I just utilized in proving this previous result, that the theorem known as Riemann's theorem on removable singularities or singular points. What this theorem states, this states that let there not be an isolated singular point of f, and now suppose f is bounded near z naught, then z naught is a removable singular point, or a removable singularity I will call, removable singular point of f।
ये है जी आपके पास। हमें कुछ नहीं करना। रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जहां पर आपके पास नेगेटिव पावर्स के सारे कोफिशिएंट जीरो है और हमें उन सारे कोफिशिएंट्स को जीरो शो करना है जी। तो अब आपके पास क्योंकि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अगर आप इसकी देखें, द लॉरेंट एक्सपेंशन इसकी किसी एक डिलीटेड नेबरहुड में वैलिड होगी। You can write this function fz as, I'm not going to write this, I'm going to write it as analytic part, उसको मेंशन करने की ज़रूरी नहीं है, something analytic part plus I will have this m equal to 1 to infinity bm upon z minus z naught to power m. And this is valid in some z minus z naught to power r. Okay? इसी किसी नेबरहुड में ये रिलेटेड नेबरहुड में ये लॉरेंट सीरीज की वैलिड है। तो हम क्या वेयर यू नो व्हाट आर द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला ये है, वेयर बी एम जो है, बी एम इज गिवन बाय दिस, हाउ डू यू कंपेयर दिस इज गिवन बाय दिस 1/2 पाई। कोई भी कंटूर ले लीजिएगा इस सर्कल के अंदर, कोई भी कंटूर ले लेता हूँ, स्मॉल रेडियस, रेडियस आर ही रखते हैं, यही कंटूर रखते हैं, इसका रेडियस ले लेते हैं, z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर, इट हैज़ टू बी एफ जेड अपान क्या होता है, नेगेटिव पावर्स होगी तो नेगेटिव पावर से इसको ऊपर लिख सकते हो, z माइनस जेड नॉट टू पावर m डी जेड। ये आपके पास बी एम की एक्सपेंशन है। ये जनरली आपके पास ये फॉर्मूला होता है, अगर आप इफ़ यू रिमेंबर कि जनरली जो कोफिशिएंट्स का लॉरेंट सीरीज में हमने एक्सपेंशन में फॉर्मूला निकाला था, ए एन कोफिशिएंट्स हमने देखे थे 1/2 पाई आई और एनी कंटूर जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक है एंड विच एनक्लोजेस दैट सिंगुलरिटी, ये दिस इज एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू पावर n प्लस 1 डी जेड होता है। बट हियर n वाज एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता था। तो नेगेटिव्स के लिए जब n नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली ये पावर आप ऊपर लिख सकते हैं इसकी m-1 करके आप इसको you can write it in this way, or you can treat m to be negative also, no issue. And if you treat this m to be negative, जब m को negative treat करोगे तो you don't have any worry. तो this is actually, this has to be m-1 होना चाहिए ये, ठीक है। नाउ no, let me clarify this thing first. This singular point is actually a removable singular point, and to show that this is a removable singular, what I have to show that this bm is 0 for every m. This is what we want to show. This is to be shown. Now let us check its modulus. First, it is given also to us that this function is bounded. So let it choose its bound. Let m positive be such that mod of fz is less than or equal to m for all 0 less than or equal to z minus z not less than r. Okay. Thus, now let's look at the modulus of bm. bm ये है, तो अब जब मॉडुलस लगाओ आपके, तो आपके पास कुछ इनइक्वालिटीज यूज करेंगे हम डायरेक्टली इंटीग्रल के अंदर मॉडुलस लेकर, तो इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1/2 पाई, okay, and this is z minus z naught equals to r, and this is mod of fz, mod of dz, oh sorry, we have z minus z naught to power m minus 1 mod of dz also, okay. Then fz less than equal to m है तो m बाहर लाइएगा, तो z minus z naught का मॉडुलस r है तो वो भी आप बाहर ला सकते हैं, इट विल बी m upon 2 pi, and it will be r to power m minus 1 times इंटीग्रल mod z minus z naught equals to r. तो पीछे आपके पास जो इंटीग्रल में बचा, that is just the arc length, and the arc length of this circle is 2 pi r. तो 2 pi r से मल्टीप्लाई करूंगा तो r और r कैंसिल आपके पास हो जाएगा, तो पावर m बचेगी, you will have m upon
2 pi a into r to power m minus 1 into 2 pi r. So what you are left with m r to power m. Now हमारे पास जो कंडीशन है कि ये जो आपके पास r का वैल्यू है, दिस कैन बी चूजन अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंस. इसको और स्मॉल में चूज कर सकता हूँ. आई जस्ट मुझे z को नहीं, z इक्वल z नॉट को नहीं लेना, तो इसको स्मॉलर में चूज कर सकता हूँ. तो इसको मैं जितना भी छोटा करूँगा, अगर इफ आई टेक इट स्मॉलर, तो ये भी छोटा होता जाएगा. इट विल गो टू 0 एज r गोज टू 0. तो अल्टीमेटली आपके पास जो मॉडुलस है इसका bm का, तो ये मॉडुलस bm का 0 हो जाएगा. तो हेंस आपके पास क्या हो जाए, bm 0 हो जाएगा. दैट इज आपके पास ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे फॉर ऑल m इक्वल्स टू 1 2 so on up to this. तो जब सारे के सारे कोफिशिएंट्स नेगेटिव पावर्स के कोफिशिएंट्स 0 हो गए, तो दिस बाय डेफिनेशन therefore z naught is removable. Z naught is a removable singularity. It's a removable singularity of this is it. Now you ask me any question.